I've watched a lot of videos of Iman Gaji and other YouTubers, and मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे I was able to come to my business model that works for me, right? So I wanted to pay full attention to this video because ये बहुत in depth जाने वाला है. You've never heard this advice before because no one will talk about this. Well, why should you even listen to me? Let's just say you're learning to ride a tricycle and मैं बाइक चलाना सीख चुका. I'm just a few steps ahead of you, so I really want to help those behind me. This is how I found my business model, my niche and my exact service, and I'm telling it all for free. So pay full attention and let's begin. So first of all, you want to understand there are 3 parts to every single business. So every single business के 3 parts होते हैं: sales, marketing और logistics. Sales being sales, marketing being marketing and logistics being जो sales और marketing में नहीं आता है. So basically sales में extroverted people who usually love to talk to people are the ones who do really good. Marketing में it is basically extrovert introverts both of them चलता है and people who have a creative output or creative thinking. And logistics में basically वो type of people work होते हैं जैसे introverts या extroverts जिन लोग का बहुत data driven mind है. मतलब you guys like to be play with those numbers, you guys like to be analytical. वो सब type of minds usually that certain aspect में work होता है. So based on your own personality, जैसे मैंने break down किया, अगर तुम extrovert and you like to talk to people, maybe sales will be the best option for you. Or if you're like me, जैसे तुमको ज़्यादा extroverted नहीं हो बट तुम बहुत creative हो, you can choose marketing. That's why I chose marketing. See, business का एक simple point है कि to provide solutions, right? वही एक business होता है. And so अगर एक simple business ही ये 3 parts में divided है, you should be able to identify कि this thing is interesting for me, this one will be really good for me. And you must solve a problem in that specific area. So first you have to decide what part of this business are you really interested in. And if you usually watch these videos on how to choose a business model, they say कि तुम्हें एक high income skill learn करना चाहिए. Now usually what happens is you don't know what skill to learn, right? मेरा भी ऐसे ही हो रहा था. I didn't know what skill to learn, and so as a guideline, you must choose a skill which has a higher barrier of entry. What do I mean by that? Now this is called the price and value equation. Now यहाँ पे ये ग्राफ में तुम अगर देखोगे कि everyone, अगर person 1, 2 and 3 same value provide कर रहे हैं, so how can they compete with each other? मतलब competitors तो इनके तो है ही, 3 लोग हैं. So how can they compete with each other is उनको अपने prices धीरे धीरे कम करने पड़ेंगे. तो they compete with each other based on price कि कौन सबसे ज़्यादा price कम कर सकता है. Whereas अगर तुम ये same चीज़ को ही देखोगे यहाँ पे, बट इफ़ पर्सन 1 एंड पर्सन 2 एंड 3 ऐसे ही है एंड 2 प्रोवाइड्स मोर वैल्यू, पर्सन 1 एंड पर्सन 3 ये प्राइस पे ही डिपेंडेंट करेंगे कंपटीशन. बट तुम यहाँ पे आके एनी अमाउंट ऑफ प्राइस चार्ज कर सकते हो बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू. तो अगर तुम बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो देन अदर्स, यू कैन चार्ज मोर प्राइस. देखो सब लोग को एंटरप्रेन्योर बनना ही है. सो यूजुअली व्हेन एवरीवन वांट्स टू बी समथिंग दे लुक एट द थिंग दैट मोस्ट पीपल डू. सो अगर मैं मार्केटिंग का एग्जांपल लूँ, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फेसबुक एड्स. सो मैं भी सोच रहा था फेसबुक एड्स लर्न करता हूँ. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वैल्यू और प्राइस का, अगर सब लोग सेम वैल्यू प्रोवाइड करें, यू कांट चार्ज मोर प्राइस एंड यू विल गो डाउन द रैबिट होल ऑफ चार्जिंग लेस 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 लेस. एंड एक ऐसा ट्रेंड अगर तुमने अभी तक फिगर आउट नहीं किया कि इफ 99% ऑफ पीपल डू समथिंग, इट इज़ प्रॉबेबली नॉट गुड. देन आई केम अक्रॉस यूट्यूब एंड गूगल एड्स. मैंने कभी यूट्यूब पे देखा ही नहीं समवन टॉकिंग अबाउट लर्निंग गूगल और यूट्यूब एड्स. सो मैंने सोचा let's just go in on this. And since Google ads का difficulty level थोड़ा high है Facebook ads से, it just makes the useless people just get out because कुछ hard चीज़ को learn करने के लिए time लगता है and most people don't want to spend that time. Now let's say तुम्हारे पास एक skill है which you have in mind जो तुम्हें learn करना है, but now you want to find an ideal client. Now the question arises, who do you actually help? Now as a general rule, तुम्हारे client के पास ये 3 things होना चाहिए: growth, audience and interest. तुम्हारा आइडियल क्लाइंट का बिजनेस शुड बी ग्रोइंग, ठीक है, इट शुडंट बी स्टैग्नेटिंग. तो अगर तुम्हें देखना है इफ़ द आइडियल क्लाइंट का बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, गूगल ट्रेंड्स पे जाओ और देखो. नहीं तो जस्ट गूगल इट कि एक्स बिजनेस ट्रेंड्स इन द लास्ट 10 years और समथिंग, एंड अगर वो ग्राफ ऊपर जा रहा है दैट मीन्स इट्स अ गुड बिजनेस टू हेल्प. द सेकेंड थिंग यू मस्ट फोकस ऑन इज द ऑडियंस. नाउ तुम्हारे आइडियल क्लाइंट जैसे कितने सारे लोग हैं. अगर तुम एक क्लाइंट को हेल्प करना चाहते हो एंड there are 10,000 people like them, it isn't as beneficial as someone who wants to help one client who has 100,000 versions of them. तो मैंने ही कैसे डिसाइड किया था कि I chose e-com because e-com is growing and e-com में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स है. लाइक
तुम रास्ते पे जाओ, तुम्हें बिलबोर्ड्स पे ई कॉम ब्रांड्स ही दिखते हैं. सो ई कॉम ब्रांड्स बहुत सारे हैं. सो ऑन एवरेज तुम्हारे क्लाइंट जैसे 100,000 प्लस और लोग होने चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज इंटरेस्ट. तुम्हें एक्चुअल इंटरेस्ट है कि नहीं वो चीज़ में. मेरे को सॉर्ट ऑफ ई कॉम में इंटरेस्ट है बिकॉज मैं सॉर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग भी कभी तो सीख रहा था ना. तुम्हारे पास एक नीश है, राइट, योर नीश. नाउ यू वांट टू फाइंड अ सर्विस डिलीवरी मेथड. मतलब कि हर एक सर्विस एक टाइप का नहीं होता है. ब्रॉडली क्लासीफाई किया तो हर एक सर्विस इज ऑफ 3 टाइप्स: डन फॉर यू, डन विथ यू एंड डन बाय यू. सो डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर देम, डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ देम, और डू यू जस्ट गिव द सोल्यूशन एंड द क्लाइंट हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. देखो, अगर तुम डन फॉर यू कर रहे हो, यू कैन चार्ज अ लॉट मोर बिकॉज यू आर टेकिंग द हेडेक अवे फ्रॉम दैट बिजनेस ओनर एंड तुम खुद पे ही दे रहे हो कि नहीं, मैं ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए सॉल्व करूंगा. डन विथ यू इज सॉर्ट ऑफ कि मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व करूंगा. एंड डन बाय यू इज मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो अगर ये यूट्यूब वीडियो का एग्जाम्पल लिया, आई एम नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर यू, आई एम सॉर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विथ यू. बिकॉज ये जो प्रॉब्लम होता है कि यू कांट आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट, मैं वो तुम्हारे लिए अभी सॉल्व कर रहा हूँ. सो यू मस्ट चूज अ सर्विस डिलीवरी फॉर योर ओन सर्विस. नाउ एक्चुअली तुम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये एक जनरल आइडिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ. डोंट बैश मी इन द कमेंट सेइंग कि भाई इसने बोला था ऐसा होएगा, नहीं वर्क हुआ मेरे लिए. जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए, if you have chosen done for you, you can start an agency or a service based business. If it is done with you, you can start a software or consultation or being a growth partner. And done by you is basically content, courses, ऑनलाइन मटेरियल या फिर एजुकेटिव मटेरियल. ना ये जस्ट जनरल टाइप्स है, मेरे को बुली मत करो कमेंट्स में कि भाई तूने ऐसा बोला था. ये जस्ट दिस इज़ वॉट हेल्प मी. सो हाउ डिड आई डू इट माई सेल्फ कि मैंने डिसाइड किया मैं गूगल एड्स करूँगा, मेरे को मार्केटिंग में सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही. एंड देन आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू डू डन फॉर यू फॉर ई कॉम ब्रांड. सो देन आई केम अप विद द आइडिया फॉर RVI मीडिया, विच इज़ माई एजेंसी, helping e-com brands scale their companies using Google and YouTube ads. ये मेरा बिजनेस मॉडल है. आई एम पुटिंग इट आउट देयर. समवॉट एक वीक में नहीं तो कुछ तो एक आना चाहिए प्रोग्रेस वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ आई एम बिल्डिंग माई एजेंसी. सो यू कैन वॉच आउट फॉर दैट. एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर दिस विद द पीपल हु एक्चुअली नीड इट. डोंट सैक्रिफाइस योर फ्यूचर सेल्फ फॉर द प्लेजर टुडे. पीस.